نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خير الماكرين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي المتين الكريم بادئ توحید کے متبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، امام احمد رضا خان کے وفاداروں، آئیے ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی محبت میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بابارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی غلامی کا ثبوت دیجیے اور بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بابارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو سرکار کی ہجرت کے تعلق سے بتاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر دین اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا، لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن انہی میں کچھ لوگ میرے سرکار کے دشمن بن بیٹھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اب کوئی تبلیغ سے نہیں روک سکتا ہے، انہیں آخر کیسے روکا جائے؟ تو انہوں نے مکہ کے اندر، دار الندوہ کے اندر بڑے بڑے کفار مکہ وہاں پر جمع ہوئے۔ انہی میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ اور بڑے بڑے کفار مکہ وہاں پر جمع ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہی کے بیچ ایک چادر اوڑھ کر ایک بوڑھا سامنے سے آیا، تو کسی نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہا میں نجد سے آیا ہوں۔ کہا کس لیے آیا ہے؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ جو تم آپس میں مشورہ کرنے جا رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اس میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کہا تو بھی ہم میں شریک ہو جا۔ اب انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے کافر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، وہ کسی اور شہر کے اندر چلے جائیں، وہاں پر دین کی تبلیغ کریں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ اتنے میں ابو جہل نے تڑپ کر کہا، اے نادان، اگر مصطفیٰ جان رحمت کو نکالنے کا ہی مطلب ہوتا، اگر وہ کسی دوسرے شہر میں چلے گئے تو ان کی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ چاشنی عطا کی ہے کہ جو ان کے کلام کو سن لیتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو بات بیکار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دیا جائے۔ اتنے میں کافر اور کہنے لگا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا، اے لوگوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اس سے پہلے ہم نے شعبہ ابی طالب کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں پر قید کر دیا اور 3 سال تک ہم نے وہاں پر پہرا دیا، نہ ہم نے انہیں پانی پینے دیا، نہ انہیں ہم نے کچھ کھانے دیا، لیکن پھر بھی ان کے خدا نے ان کی حفاظت فرمائی تھی کہ اس بات کو تم بھول گئے۔ اب بڑے بڑے کفار مکہ وہاں پر بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں آخر مصطفیٰ جان رحمت کو تبلیغ سے کیسے روکا جائے۔ تو اتنے میں ابو جہل نے کہا، اے لوگوں، میرے ذہن میں ایک بات ہے۔ تو کہا، اے ابو جہل بتا تیرا مشورہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آج رات اپنے مکان میں سوئیں تو ہر قبیلے کا ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں تلوار لے لے، اور جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں تو ہر نوجوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے۔ اس طریقے سے ہم محمد کو قتل کر دیں گے اور کسی ایک کے اوپر اس کی سزا متعین نہیں ہوگی۔ اس لیے بنی قریش جو ہیں پورے عرب سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ مشورہ
बड़ा पसंद आया, लोगों ने अबू जहल की बात को मान लिया। लेकिन आओ जरा रब की कुदरत को देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तरफ वही नाजिल कर दी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब आज रात तुम मक्का को छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही आ चुकी है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र के लिए दो शख्सियतों को जो है मुतय्यन किया। एक शख्सियत का नाम हज़रत अबू बकर है और दूसरे मौला अली हैं। मेरे सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हज़रत अबू बकर को बुलाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे सरकार ने फरमाया, अबू बकर अल्लाह की तरफ से हुक्म आ चुका है, अब मुझे मक्का छोड़कर मदीने जाना है और मैं अब मदीने की तरफ हिजरत कर लूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपके कदमों पर कुर्बान हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया, ए अबू बकर ये बड़ा मुश्किल सफ़र है। अबू बकर सोच लिया। अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि मैं आपके साथ सफ़र करूं। मेरे सरकार ने इजाज़त दे दी। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चलने लगे, मेरे सरकार ने कहा, अबू बकर ठहर जाओ। हज़रत अबू बकर ठहर जाते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, अबू बकर ये तो बताओ, अबू बकर ये बताओ सफ़र में तुम मेरे साथ होंगे। ए अबू बकर अगर कुफ़ार मक्का हमको पकड़ लें और तुझको गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार करने के बाद अबू बकर अगर तेरे सामने तेरी माँ को कत्ल करने के लिए कहा जाए, तेरे सामने तेरे बाप को अगर कत्ल किया जाए, ए अबू बकर बता अगर तेरे सामने कुफ़ार मक्का कहें, अबू बकर हम तुझको कत्ल कर देंगे वरना तुम अपने महबूब के दामन को छोड़ दे। अबू बकर तुझ पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएं, तेरे सामने तेरे बेटों को कत्ल कर दिया जाए, अबू बकर उसके बाद जो है कुफ़ार मक्का तुझसे कहें, अबू बकर तेरी जान ले लेंगे, तेरे बच्चों को कत्ल कर देंगे, तेरे माँ बाप को कत्ल कर देंगे। इसलिए अबू बकर नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। और ये अबू बकर उसके बाद तुमसे कुफ़ार मक्का कहें कि अबू बकर अगर तू नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देगा, हम तुझे मक्का की सरदारी अता कर देंगे, हम तुझको हीरे जवाहरात अता कर देंगे। ए अबू बकर दुनिया की तमाम सल्तनत तुझे अता कर देंगे। अब मेरे सरकार ने पूछा, अबू बकर बता उस वक्त तेरा मशवरा क्या होगा, उस वक्त तेरा जवाब क्या होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जरा जवाब सुनो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह अगर कुफ़ार मक्का तमाम दुनिया की दौलत मेरे कदमों में समेट कर ला कर रख दें, या रसूल अल्लाह मक्का की हुकूमत मुझको अता कर दें, या रसूल अल्लाह अबू बकर को ये तो गवारा है कि उसकी औलाद को उसके सामने कत्ल कर दिया जाए, या रसूल अल्लाह अबू बकर को ये तो गवारा है कि उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया जाए, अबू बकर के जिस्म पर घोड़ों को दौड़ा दिया जाए। ए मेरे आका ये तो गवारा है, लेकिन कोई ये कहे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की मैं गुलामी को छोड़ दूं, या रसूल अल्लाह कायनात को तो छोड़ सकता हूं लेकिन आपके गुलामी को अबू बकर कभी नहीं छोड़ सकता। अब जानते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब सुना तो मेरे सरकार ने अबू बकर को इनाम क्या दिया। मेरे सरकार फरमाते हैं, अबू बकर तूने सच कहा, इसलिए अबू बकर मेरी निस्बत तुझसे ऐसी है जैसी मेरी निस्बत मेरे सर से है। और दूसरी रिवायत में आता है, मेरे सरकार ने फरमाया, अबू बकर मेरी निस्बत तुझसे ऐसी है जैसे मेरी निस्बत मेरे क़ल्ब से यानी मेरे दिल से है। उसके बाद मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाया। हज़रत अली तशरीफ़ लाएं। मेरे सरकार ने कहा, अली अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो चुकी है, आज रात में मक्का को छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो जाऊंगा। अली आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और ये कुफ़ार मक्का की मेरे पास अमानतें हैं, सुबह उठकर उनकी अमानतों को वापस कर देना। लेकिन अली एक बात बता, तू मेरे बिस्तर पर सोएगा, कुफ़ार मक्का के हाथ में तलवारें होंगी, उनके हाथ में खंजर होंगे, उनके हाथ में तीर और कमान होगा। अली बताओ तू मेरे बिस्तर पर होगा। अली अगर तुझे कुफ़ार मक्का गिरफ्तार कर लें और तुझ पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएं, अली तुझको भूखा रखा जाए, अली तुझको प्यासा रखा जाए, अली तुझे जंजीरों में जकड़ दिया जाए, अली तुझ पर दाना और पानी बंद कर दिया जाए, उसके बाद अगर कुफ़ार मक्का तुझसे पूछें, ए अली नबी का दामन छोड़ दे, अली तुझे
हुकूमत अदा कर दी जाएगी, तुझे दौलत और शोहरत दे दी जाएगी। अली बता उस वक्त तेरा जवाब क्या होगा? तो मुसलमानों कुर्बान जाओ हजरत अली की अजमत पर, उनकी शान पर कुर्बान जाओ। हजरत अली जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, गुलाम की तमन्ना है ये है, या रसूल अल्लाह, अली इसलिए जी रहा है कि नबी के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, आए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे सरकार ने हजरत अली से कह दिया, अली तू मेरे बिस्तर पर सो जाना। हजरत अली सरकार के बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन जब निस्फ रात गुजर जाती है, कुफ्फारे मक्का जो हैं अपने हाथ में तलवारें लेकर खड़े हैं और दिल में ये सोच रहे हैं कि आमना का लाल जैसे ही मोहम्मद अपने घर से बाहर तशरीफ लाएगा, सरकार को कत्ल कर दिया जाएगा। हाथ में इनके तलवारें हैं, लेकिन जैसे ही मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाते हैं, मेरे सरकार अपने घर से बाहर तशरीफ लाए हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ वही नाजिल हो गई। जिब्रील आ जाते हैं, जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमाता है आप कुरान की तिलावत कीजिए, आप सूरह यासीन को पढ़िए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन को पढ़ना शुरू किया है, सूरह यासीन की तिलावत करना शुरू की है, और साथ ही साथ जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जो है अपने हाथ में खाक को ले लें और इस पर दम करने कुफ्फारे मक्का के सरों पर मिट्टी को डाल दें। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में खाक को लिया और कुफ्फारे मक्का के सरों पर वो मिट्टी डाल दी है। अब जरा सरकार के मुअजिज़ा को देखते हुए चलो, मेरे सरकार की शान को देखो, मेरे सरकार की अजमत को देखो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके सामने से निकल रहे हैं, लेकिन मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी काफिर को नजर नहीं आते हैं। सामने एक शख्स खड़ा है, वो मेरे सरकार को देख रहा है कि सरकार कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सरकार काफिरों के सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। जब सुबह का सफेदा फैलता है, और एक बात आज बताता हुआ चलूं, आज जो ये कहा जाता है कि अगर सरकार हाजिर नाजिर हैं, अगर सरकार हर जगह मौजूद हैं, तो मुस्तफ़ा नजर क्यों नहीं आते हैं, सरकार नजर क्यों नहीं आते हैं? उन जालिमों से कहना चाहता हूँ, वाकई मेरे नबी जो हैं पूरी कायनात को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देखता हो। ये तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत है, लेकिन आज एतराज़ किया जाता है कि अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, तो हर जगह नजर क्यों नहीं आते हैं? उन नादानों से कहना चाहता हूं, मेरा नबी हाजिर नाजिर है। अरे नबी को देखने के लिए, नबी के दीदार करने के लिए, कसम खुदा की अगर नबी का दीदार करना चाहते हो तो अबू बकर जैसी आंखें चाहिए हैं, उमर जैसा कल्ब चाहिए है, उस्मान जैसी सीरत चाहिए है, अली जैसी शुजाअत चाहिए है। और जिस दिन हजरत अली की जैसी मोहब्बत हमारे सीनों में पैदा हो जाएगी, हम जहां नजर उठाकर देखेंगे वहां मुस्तफ़ा जाने रहमत का हमें जलवा नजर आएगा। ये तो बात आज बेकार की जाती है। अगर सरकार जो हैं अगर हाजिर नाजिर हैं तो सरकार नजर क्यों नहीं आते हैं? मेरे सरकार कुफ्फारे मक्का के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन सरकार किसी को नजर नहीं आते। इधर अली जो हैं मुस्तफ़ा के बिस्तर पर आराम से सो रहे हैं। जब सुबह कुफ्फारे मक्का ने देखा कि सरकार तो घर से बाहर नहीं आए, घर के अंदर जब जाते हैं क्या देखते हैं कि मुस्तफ़ा के बिस्तर पर अली लेटे हैं। अली से पूछा, अली बताओ मुस्तफ़ा कहाँ हैं? अली ने कहा सरकार तो जा चुके हैं। अली फरमाते हैं, उसके बाद जब सुबह हुई मैं उठा, मैंने अमानतों वालों की अमानतों को दे दिया और मैं जो है मदीने की तरफ रवाना हो गया। लेकिन यहाँ एक नुक्ते की बात मैं आपको बताता हुआ चलूँ। हज़रत अली से किसी ने पूछा, हज़रत अली से किसी ने पूछा, ए अली ये तो बताओ क्या पूरी ज़िंदगी तुमने जंगों को लड़ा है? कभी तुम्हारी तलवार जो है उहद के मैदान में चमकी है, तो कभी खंदक में चमकी है, तो कभी जंगे बदर में चमकी है, तो कभी जंगे हुनैन में चमकी है, कभी तबूक में चमकी है। ए अली ये तो बताओ तुम वही हो ना कि जिसके नाम से खैबर काब जाता है? अली ये तो बताओ इतनी जंगें लड़ी हैं, अली इतनी जंगें इतनी शुजाअत के साथ लड़े हो, अली ये तो बताओ इतनी जंगें लड़ने के बाद क्या कभी चैन से सोए हो, कभी पूरी रात चैन से सोए हो? तो हजरत अली ने जवाब दिया, कभी चैन से तो ना सोया, लेकिन एक रात चैन से सोया हूँ। तो पूछने वाले ने पूछा, अली वो रात कौन सी है? तो अली का जवाब सुनो। हजरत अली कहते हैं, उस रात
जिस रात मुस्तफ़ा जाने रहमत हिजरत कर रहे थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का से मदीना जा रहे थे, तो पूछने वाले ने पूछा, अली उस वक्त तक तो तलवारें अपना काम कर रही थी, उस वक्त तो बर्छियां चमक रही थी, उस वक्त तो खंजर अपना काम करने वाले थे। अरे अली उस वक्त तो जान जाने का खतरा था, अली उस वक्त तो जान चली जाती, उस वक्त अली तुमको चैन की नींद कैसे आ गई? तो हजरत अली का जवाब सुनो, हजरत अली का ईमान भरा जवाब सुनो। हजरत अली कहते हैं, कसम खुदा की जिसकी जिंदगी की जमानत आमना का लाल ले ले, उसे दुनिया में कोई माई का लाल मार नहीं सकता। अली फरमाती, मेरी जिंदगी की जमानत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ले ली थी, इस वजह से मुझे उस रात कुछ हो ही नहीं सकता था। इसलिए मुसलमानों, ये सहाबा का अकीदा है कि जो जान तो जा सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो कह दिया वो होकर रहेगा। इधर मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लिया। एक घोड़े पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सवार हैं और दूसरी सवारी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार हैं। रात में मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र शुरू किया। एक ऊँटनी पर अबू बकर हैं, दूसरी ऊँटनी पर मेरे मुस्तफ़ा हैं। अब जब ये सफ़र आगे बढ़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे होते हैं, कभी सरकार के पीछे आ जाते हैं, कभी दाएं आ जाते हैं तो कभी बाएं आ जाते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस किरदार को देखा, इस उल्फत व मोहब्बत को देखा, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर ये तो बताओ, कभी आगे जाते हो, कभी पीछे आते हो, कभी दाएं कभी बाएं जाते हो, आखिर अबू बकर बात क्या है? हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, उनकी मोहब्बत पर मुसलमानों कुर्बान जाओ। सहाबा ने सरकार से मोहब्बत कैसी की है, आज हम सरकार से कैसी मोहब्बत करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ये डर है, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ये डर पैदा होता है कि ऐसा ना हो कि कोई काफिर कहीं आगे से आ जाए और या रसूल अल्लाह आपको नुकसान दे, इसलिए मैं आगे चला जाता हूँ, अपने सीने को मैं पेश कर देता हूँ कि कुफ्फार का अगर कोई तीर आए तो मुस्तफ़ा तक आने से पहले अबू बकर का सीना आपके लिए हाजिर है। मेरे सरकार ने पूछा, अबू बकर पीछे क्यों आते हो? अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई पीछे से कोई काफिर आ जाए तो अबू बकर की पीठ है, पहले वो मेरी पीठ पर वार करे, उसके बाद आपके पास है। अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं दाएं इसलिए जाता हूं कि अगर दाएं से कोई तीर आए तो अबू बकर अपना दाहिना बाजू पेश कर दे, अगर बाएं से कोई तीर आए तो अबू बकर अपना बाइना हाथ को पेश कर दे। या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना ये है, अबू बकर की ख्वाहिश ये है कि या रसूल अल्लाह, जब तक अबू बकर के जिस्म में जान है, या रसूल अल्लाह, ये जान आपके गुलाम है, या रसूल अल्लाह, मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन आपके जिस्म पर कोई तकलीफ अबू बकर गवारा नहीं कर सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम गारे सौर के करीब पहुँचे तो मैंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऊँटनी से उतारा। अब जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रेत पर आए, अब जरा सरकार का मौजिज़ा देखो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कदम को जब रेत पर रखा, अबू बकर फरमाती है, सरकार रेत से गुजरते लेकिन रेत पर सरकार के कदम का निशान नजर ना आता। आज वो लोग कहाँ जो लोग कहते हैं कि हम माज़अल्लाह सरकार जो हमारे जैसे हैं, उन नादानों से कहना चाहता हूँ, अगर सरकार तुम्हारे जैसे हैं तो तुम रेत पर चलो और मुझको दिखाओ कि अगर तुम रेत पर चलते हो तुम्हारे कदम के निशान बन जाते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा चल रहे हैं तो रेत पर कदम के निशान नहीं बन रहे हैं। अबू बकर फरमाते हैं, अब जब हम पथरीली ज़मीन से गुजरे हैं, जब मैं जो पथरीली ज़मीन से गुजरा, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पत्थर पर किसी पत्थर पर अपने कदम को रख देते तो वो पत्थर पसीज जाता, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को अपने सीने में समेट लेता, यानी पत्थर पर सरकार के कदम का निशान बन जाता। अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बात क्या है कि रेत पर चलते हो आपके कदम का निशान नहीं बनता है लेकिन पत्थर पर चलते हो, ए मेरे आका, आपके कदम का निशान बन जाता है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, ये चरिंदो परिंद, ये जमीन और आसमान, ये शजर हजर, कायनात का एक एक जर्रा इस बात को जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसलिए पत्थर जो है मुझ पर
सलाम भेजते हैं और इस पत्थर की अबू बकर आरज़ू ये है कि या रसूल अल्लाह आप मेरे सीने पर अपना कदम रख दो, या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए बिलख जाऊंगा, या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए आसानी पैदा कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अब जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के करीब आए, मैंने देखा कि उसमें जो बहुत ज़्यादा जाला है और बहुत पुराना गार है। मैंने सरकार से कहा या रसूल अल्लाह आप इसी गार के करीब ठहर जाइए, पहले गुलाम अंदर जाएगा या रसूल अल्लाह, उसके बाद आप अंदर तशरीफ़ लाइए। अबू बकर फरमाते मैं गार के अंदर गया, मैंने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा बिल बने हुए हैं। मैं उस गार के अंदर गया, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से उसकी सफाई की और मैंने अपने कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उसमें कुछ सुराख थे, मैंने उन सुराखों को बंद कर दिया। लेकिन एक सुराख था कि मेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने उसे बंद नहीं किया, लेकिन वहीं पर मैंने अपनी एड़ी को लगा दिया। अबू बकर फरमाते हैं कि अब मैंने सरकार को आवाज़ दी या रसूल अल्लाह आप गार के अंदर तशरीफ़ ले आइए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ ले गए। अबू बकर फरमाती कि मैं बैठ गया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में रख दिया। अबू बकर फरमाते हैं पूरी कायनात की रौनक जो है मेरी गोद में आ गई। मैं उस दिन बड़ा खुश था, मैं दिल ही दिल में बड़ा खुशी महसूस कर रहा था। सरकार ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मेरे सरकार आराम करने लगे। अबू बकर फरमाते हैं मेरी एड़ी जहां पर रखी हुई थी उसी वहीं पर एक सुराख था और उस सुराख में एक सांप था। वो सांप बार बार आता लेकिन देखता कि यार गार अबू बकर की एड़ी लगी हुई है, फिर वापस चला जाता। लेकिन अबू बकर कहते हैं जब वो सांप करीब आया उस सांप ने मुझे काट लिया। एक बार काटा, मैंने अपने कदम को ना हिलाया। जब उसने दूसरी बार मुझको काटा और उसका जहर जो है जब मेरे जिस्म पर चढ़ना शुरू हुआ, अबू बकर फरमाते हैं मैं सोचने लगा या अल्लाह तेरे महबूब का चेहरा मेरी गोद में है, परवरदिगार दोनों आलम का मसीहा मेरी गोद में है। ए मेरे परवरदिगार तेरा महबूब मेरी गोद में है। परवरदिगार ऐसा ना हो मुझसे कोई खता हो जाए, मेरे परवरदिगार ऐसा ना हो तेरे महबूब की नींद में खलल पड़ जाए। मौला अबू बकर को ये गवारा नहीं है। अबू बकर जो है काटे हुए सांप के जहर को तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर को ये गवारा नहीं है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल पड़ जाए। अबू बकर फरमाते हैं मैं काफ़ी देर इस दर्द को सहता रहा, काफ़ी देर मैं इस तकलीफ को सहता रहा, लेकिन जब मुझसे दर्द बाहर हो गया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। जैसे ही मेरी आंख से आंसू निकला है और मेरे सरकार के चेहरे पर पड़ा। अबू बकर कहते हैं कि जब वो सरकार के चेहरे पर आंसू पड़ा मेरे सरकार बेदार हो जाते हैं और जैसे ही मेरे सरकार बेदार हुए मेरे सरकार ने पूछा अबू बकर क्या बात है, अबू बकर क्यों रो रहे हो, अबू बकर तुम्हें किस चीज़ ने रुला दिया। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काट लिया, या रसूल अल्लाह उसका जहर मेरे जिस्म पर असर कर रहा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मुस्कुराकर कहा ए अबू बकर फिक्र ना करो, अल्लाह हमारा मददगार है, अबू बकर फिक्र ना करो। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब जरा मेरे सरकार का मुअज्जिज़ा देखो, मेरे सरकार की अज़मत को देखो, मेरे मुस्तफ़ा करीम की जरा शान को देखो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक लुआब को लिया, अपने मुबारक थूक को लिया, अबू बकर की एड़ी पर लगा दिया। इधर मुस्तफ़ा का थूक लखना था। अबू बकर फरमाते हैं अब जो सांप ने मुझे काटा था उसका जहर जो मेरे जिस्म पर असर कर रहा था, कसम खुदा की मुस्तफ़ा का लुआब लखना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जो फिर से शिफा अता कर दी। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकत से मुझसे जो जहर को उतार दिया। लेकिन उसके बाद मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अबू बकर प्यासा है, ए मेरे आका मुझे पानी पिलाइए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के लिए दुआ कर दी। मेरे अल्लाह ने दुआ की मेरे परवरदिगार मेरा यार गार अबू बकर प्यासा है, मौला हमारी मदद फरमा।
इधर मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुआ करना था, उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से एक चश्मा भेज दिया। जिब्रील आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप अबू बकर से कहिए कि ये गारे सौर के मुंह पर जाएं। अबू बकर फरमाते हैं जब मैं गार के मुंह पर पहुंचा हूँ मैंने देखा कि जन्नत से एक चश्मा आ चुका है। अबू बकर फरमाते हैं मैंने उसके पानी को पिया और खूब सैराब होकर मैंने उस पानी को पिया। अबू बकर फरमाते हैं अब मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे सरकार ने पूछा अबू बकर बताओ वो पानी कैसा था, अबू बकर बताओ वो पानी कहाँ से आया था। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, या रसूल अल्लाह ये आप जाने आपका खुदा जाने। मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। मेरे सरकार ने मुस्कुराकर पूछा अबू बकर ये तो बताओ आखिर उस चश्मा का पानी कैसा था। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार था, या रसूल अल्लाह शहद से ज़्यादा मीठा था, ए मेरे आका वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। मेरे सरकार ने पूछा अबू बकर जानते हो ये चश्मा कहाँ से आया है। अबू बकर खामोश हो गए। मेरे सरकार ने फरमाया अबू बकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चश्मा जो है हमारे लिए जन्नत से भेजा है, लेकिन आपको एक बात मैं बताता हुआ चलूँ, कोई एतराज़ करने वाला एतराज़ कर सकता है कि अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत चाहते तो अपनी उंगली का इशारा कर देते तो आसमान से पानी बरसने लगता, अगर मुस्तफ़ा चाहते तो अपनी उंगली को उठा देते उंगली से जो है चश्मा बहने लगता। लेकिन आखिर जन्नत से चश्मा क्यों आया है अबू बकर सिद्दीक के लिए। लेकिन मैं उन नादानों से कहना चाहता हूँ कि अरे अगर उन नादानों से कहना चाहता हूँ कि उंगली से पानी निकालना, पैर से पानी निकालना हज़रत दानियाल के लिए भी जो है हज़रत दानियाल ने दुआ की थी तब भी जो ज़मीन से पानी निकला था। हज़रत अय्यूब ने दुआ की थी तब भी ज़मीन से पानी निकला था। हज़रत मूसा ने अपने आसा को ज़मीन पत्थर पर मारा था तो पत्थर से 12 पानी के चश्मे निकले थे। हज़रत इस्माइल ने अपनी एड़ी को ज़मीन पर मारा था तो ज़मीन से आबे ज़मज़म निकला था। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफ़ा करीम को वो मोजिज़ा अता किया है कि अरे जो पैर की एड़ी से जो आबे ज़मज़म को निकाल दे वो ज़बीउल्लाह होता है, और जिसके लिए जन्नत का चश्मा आ जाए कसम खुदा की भाई हबीबुल्लाह होता है, वो अल्लाह का हबीब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे मुस्तफ़ा की शान को बड़ा बुलंदो बाला किया है। अब हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि हमने गारे सौर से सफ़र शुरू किया और मैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। इधर मक्का के अंदर एक कोहराम बर्पा हो गया कि सरकार मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली। अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया इन बड़े बड़े कुफ़ारे मक्का ने कहा कि जो मुस्तफ़ा करीम को और अबू बकर को जो गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा। उसी मक्का के अंदर एक सूरमा था तारीख में जिनका नाम सुराका आता है। सुराका पूरे अरब के अंदर इनसे ज़्यादा तेज कोई घोड़ा नहीं दौड़ा पाता था। सुराका ने कहा ये लोगों अभी मैं जाता हूँ और मुस्तफ़ा और अबू बकर को अभी गिरफ्तार करके लाता हूँ। इसने अपने घोड़े को लिया और ये मक्का से मुस्तफ़ा करीम के ताक़ुब में चल दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे सरकार आगे आगे हैं, मैं सरकार के पीछे पीछे हूँ। अभी हम थोड़ी दूर पहुँचे थे लेकिन मैंने पीछे क्या देखा कि सुराका अपनी सवारी के साथ आ रहा है। सुराका अपनी सवारी के साथ आ रहा है। मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सुराका हमारे पीछे आ रहा है। मेरे सरकार ने फरमाया अबू बकर फिक्र ना करो, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। अबू बकर फरमाते मैंने सब्र किया, फिर मैंने अपनी सवारी को तेज़ कर दिया। लेकिन अबू बकर फरमाते हैं मुझे चैन ना पड़ा, फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने देखा सुराका और करीब आ चुका है। मैंने सरकार से कहा या रसूल अल्लाह अब तो सुराका और करीब आ गया। मेरे सरकार ने फरमाया अबू बकर फिक्र ना करो, अल्लाह हमारी मदद करने वाला है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। अबू बकर फरमाते हैं अब मैंने अपनी सवारी को और तेज कर दिया। लेकिन जब मैंने तीसरी बार देखा कि सुराका बिल्कुल करीब आ गया, मैंने सरकार से कहा या रसूल अल्लाह अगर अब आपने दुआ ना की तो सुराका हमको गिरफ्तार कर लेगा। मेरे सरकार ने पीछे मुड़कर देखा, मेरे सरकार ने देखा कि सुराका वाकई बिल्कुल करीब आ चुका है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दुआ की और ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन सुराका के घोड़े को अपने अंदर कर ले। मेरे मुस्तफ़ा का दुआ करना था। इधर मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ की, ज़मीन ने अपने सीने को चाक किया और सुराका को अपने अंदर कर लिया। इधर जब सुराका ने मेरे सरकार के इस मोजिज़े को देखा, मेरे सरकार की इस शान को देखा, सुराका हैरत में पड़ गया। सोचने लगा, या अल्लाह ये क्या है, आखिर मेरा घोड़ा जो ज़मीन में कैसे चला गया, मेरा घोड़ा ज़मीन में कैसे धंस गया। बड़ा जोर लगाता रहा, चाबुक पर चाबुक अपने घोड़े को मारता रहा, लेकिन घोड़ा बाहर न आया। सुराका समझ गया ये ज़मीन का कमाल नहीं है, ये ज़मीन का कमाल नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो दुआ की है ये उसका कमाल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरस आ गया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को आज़ाद कर दिया, लेकिन सुराका के दिल में 100 ऊँटों का लालच था। सुराका फिर मुस्तफ़ा के पीछे आया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फिर दुआ की सुराका के घोड़े और सुराका को ज़मीन ने अपने अंदर कर लिया। अब सुराका फिर हैरत में पड़ गया, या अल्लाह ये क्या माजरा है, आखिर मेरा घोड़ा मैं ज़मीन के अंदर कैसे चला गया। सुराका ने फिर मेरे सरकार की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप मुझको माफ़ कर दीजिए, ए मेरे आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे सरकार को तरस आ गया, और तरस क्यों ना आए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी को तमाम कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मेरे सरकार को रहम आ गया, मेरे सरकार ने फिर आज़ाद कर दिया। लेकिन सुराका के दिल में फिर लालच आ गया, फिर सुराका मेरे सरकार के पीछे आया। अब मेरे सरकार ने जब सुराका के लिए दुआ की है तो सुराका पूरा जो है ज़मीन के अंदर धंस चुका है, सिर्फ उसका सर चमक रहा है। सुराका रोने लगा, सुराका गिड़गिड़ाने लगा, सुराका सरकार की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ए मेरे आका मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी यतीम हो जाएगी, या रसूल अल्लाह मेरे अलावा मेरे बच्चों का कोई देखने वाला नहीं, या रसूल अल्लाह रहम कीजिए, मेरे आका मुझे बचा लीजिए। मेरे सरकार को तरस आ गया, सरकार को रहम आ गया। मेरे सरकार ने फिर ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन ने सुराका को आज़ाद कर दिया। लेकिन अब जब सुराका चलने लगा, जब सुराका जाने लगा, जब सुराका मायूसी की हालत में जाने लगा, मेरे सरकार ने अपनी सवारी को देख लिया। अब जरा मुसलमानों सरकार की आज़मत को देखो। मेरे सरकार दुनिया वालों को अता क्या करते हैं, अरे अपने तो अपने, अगर कोई बेगाना मुस्तफ़ा की बारगाह में आता है तो मेरे मुस्तफ़ा उसको भी अता करते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुराका ठहर जाओ। सुराका ठहर गया। मेरे सरकार ने फरमाया, सुराका किस लिए आए थे? सुराका ने कहा, या रसूल अल्लाह 100 ऊँटों का लालच आपके पीछे लेकर आया था। मेरे सरकार का जवाब सुनो। मेरे सरकार ने फरमाया, सुराका जो मोहम्मद आरबी की बारगाह में एक बार आ जाता है, सुराका हमारी बारगाह में जो एक बार आ जाता है, सुराका हम उससे कभी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। सुराका कहने लगा, या रसूल अल्लाह आप मुझको क्या अता करेंगे? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे सुराका अरब वाले तो तुझको 100 ऊँट अता करते हैं, लेकिन सुराका मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द तेरे हाथ में जो है कैसरो किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। अब जरा तारीख को देखो, वो लोग जो ये कहते हैं कि सरकार को गैब नहीं है, सरकार पीठ पीछे की सरकार को खबर नहीं है, अरे कसम खुदा की, हजरत उमर फरमाते हैं कि जब कैसरो किसरा को फतह किया गया और वहां के जब कंगन लाए गए तो वो किसी और को नहीं पहनाए गए, वो सुराका को पहनाए गए। तो साहबियों ने पुकार कर कहा, कसम खुदा की, मेरे नबी को कल जो होने वाला है मुस्तफ़ा को उसकी भी खबर है, और जो कल होगा मेरे मुस्तफ़ा को उसकी भी खबर है, और जो क़यामत तक होने वाला है मेरे मुस्तफ़ा को उसकी भी खबर है। इसीलिए तो मेरा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये हजरत सुराका, ये मेरे सरकार का इल्म गैब है। अबू बकर फरमाते हैं, अब जब हम और आगे बढ़े, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक झोपड़ी के पास से सरकार का गुजर हुआ। मेरे सरकार ने कहा, ए अबू बकर इस झोपड़ी में जाओ और इसमें एक ज़ईफ़ा से कहना कि ज़ईफ़ा अगर कुछ खाने के लिए हो तो हमको बता। अबू बकर फरमाते मैं उस झोपड़ी के अंदर गया।
میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، بڑی ضعیف، بڑی کمزور، بڑی لاغر ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں اس ضعیفہ کے پاس پہنچا اور تاریخ میں مسلمانوں اسی خاتون کا نام معبد آتا ہے۔ معبد فرماتی ہیں کہ ابو بکر جب میرے پاس آئے، میں نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا اے ضعیفہ یہ بتا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو معبد کہنے لگی ابو بکر گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں گھر سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے معبد یہ جو بکری بندی ہے کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے معبد اگر تیری اجازت ہو تو میں اس بکری کا دودھ نکال لوں۔ معبد کہتی میں بڑی حیرت کے ساتھ سرکار کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی ہے۔ میرے سرکار نے کہا اگر تیری اجازت ہو تب میں اس کا دودھ نکال لوں۔ محبت کہتی ہے اگر آپ نکالنا چاہیں تو اس کے دودھ کو نکال لیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب جب بکری کے تھنوں میں اپنے ہاتھ کو لگایا ہے اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب جب دودھ کو دہنا شروع کیا ہے، محبت بھی دیکھ رہی ہیں، ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے سرکار نے جب دودھ نکالنا شروع کیا ہے، اب وہی بکری جس سے کبھی دودھ نہ نکلا تھا، جو ابھی گابن بھی نہیں ہے، ابو بکر فرماتے ہیں محبت فرماتی ہیں کہ جب سرکار نے دودھ کو دہنا شروع کیا ہے اس بکری سے اتنا دودھ نکل رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی بکری نہ، ہمارے گھر میں کوئی ایسا برتن نہ بچا جو دودھ سے نہ بھر گیا ہو۔ ابو بکر فرماتے ہیں اس دودھ کو میں نے بھی سیراب ہو کر پیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے بھی پیا۔ محبت فرماتی ہے کہ اب اس بکری کی شان یہ ہو گئی، اس بکری کی عظمت یہ ہو گئی، اللہ رب العزت نے اس بکری کو اتنی قوت عطا کر دی۔ محبت فرماتی ہیں میں جب بھی اس بکری کا دودھ دیتی وہ میری تمام بکریوں سے زیادہ دودھ عطا کر دیتی۔ لیکن ایک تاریخی بات میں آپ کو اور بتاتا ہوا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دور میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بھوک اور پیاس چلاتے، چاروں طرف جو قحط سالی نظر آتی۔ حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ ہیں، حضرت عمر سے کہے عمر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس قحط کو ہم سے دور کر دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بکری کے دودھ کو دہا تھا اسی بکری کو لایا جائے۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اسی بکری کو بلوایا اور جب وہی بکری میری بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس جو ہے سینکڑوں سے لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اب جب میں نے اس بکری کو جو ہے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دیا، میں نے اس بکری کو میرے مصطفیٰ کریم کا واسطہ دیا اور جب میں نے اس کا دودھ دونا شروع کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس کا دودھ میں نے دونا شروع کیا اور اس کے میں نے دودھ کو نکال لیا۔ اب عرب میں جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، جتنے مسلمان میرے پاس آتے ہیں، بچے میرے پاس آتے ہیں، اسی دودھ کو میں پلا دیتا۔ اگر کوئی عورت میرے پاس آتی اسی بکری کے دودھ کو میں پلا دیتا۔ اگر کوئی نوجوان میرے پاس آتا میں اسی دودھ کو پلا دیتا۔ عرب والوں کا یہ بیان ہے، حضرت عمر پکار کر کہتے ہیں قسم خدا کی لوگوں کی پیاسیں تو بجھ گئیں، قسم خدا کی لوگوں کی بھوکیں تو مٹ گئیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے جس بکری کے تھنوں پر اپنے ہاتھ کو پھیرا تھا، قسم خدا کی اس دودھ میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا کر دی کہ پورے عرب کے لوگوں نے اس دودھ کو پی لیا لیکن وہ دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ سرکار جس چیز پر اپنے ہاتھ کو لگا دیتے ہیں اللہ اور اس چیز میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سرکار کی ہجرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی سنتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔